this program today. So it's been 7 years since I have not come to my country, Nepal, as well as India. So after I won my competition, this is the first time I made my presence. This is my way or my medium through you all, and huge thank you to you all. Through you all, I wanted to share my experiences and perhaps maybe a line, one or two, inspirational line for girls, that why education is so important, why financial independence is so important, why owning your decision, owning your identity as a person, as a girl, as a nation, as a citizen is so important. So the purpose is really to create awareness about women empowerment, self-esteem. If I can do it, if I'm somebody who's born with limited resources, with very less money, if I can do it and achieve this feat, any girl in Nepal or India or anywhere in the world can do it. So that is really the purpose of making sure that my experiences, my journey can reach to most of the people in Nepal. Chota, I think Chota is not Chota. Chota is like population wise Chota, area wise Chota. जैसे इंडिया का जो एरिया है, जो लैंड है, वो अमेरिका का 1/7 है अगर लैंड देखेंगे, लेकिन अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की 1/10 है. तो छोटा मतलब किसी का सेल्फ एस्टीम छोटा नहीं, छोटा मतलब छोटी पॉपुलेशन. लेकिन छोटा मतलब ये नहीं है, देखिए आप कितना ज्यादा यहाँ पर ऑफर है. We should be proud that we are Nepali citizen. We should be proud. I am proud that I am Nepali Buhari. When I came, we have Kapil Vastu. We have like so many amazing. But every time I come, if you go to Pokhara, even Switzerland, I don't know if you guys have seen pictures of Switzerland. Even Switzerland feels short of Pokhara. It's so beautiful. If you go to Raj Darbar or if you go to Pashupatinath, those cultural heritage, and just imagine if people in South America, they know about Pashupatinath and the beauty of Nepal, what will be the level of tourism? So if we have that level of transportation awareness, you can improve tourism, you can improve trade, you can improve collaboration, you can improve funding through like international platforms. So there is a lot more that this country has to offer to the international platform. That's what I'm trying to say. Even though we have 30-40 million people, but we have, I don't know, billions and billions worth of cultural heritage that we have to offer. So we are no less than any other country in the world. Future planning अभी तो यही है. अभी जैसे मेरा जो कंपनी है इग्नाइट, उसका जो अर्निंग है, मैं चाहती हूँ कि मैं NGOs में यहाँ दूँ. अनुराधा कोइराला जी से एक बार मेरी चर्चा हुई थी, तो मैं चाहती हूँ विमेन ट्रैफिकिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मैं जो है थोड़ा फंडिंग दूँ. दूसरा है निर्मला गावली जी, तो उनको मैंने इनवाइट किया था माइक्रोसॉफ्ट में विमेंस डे में. तो उनके एनजीओ जिसका जो कोलैबोरेशन है अमेरिका में, उसका नाम है TRIFG. उस कोलैबोरेशन में भी मैं फंडिंग देना चाहती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि फंडिंग और आपका टाइम, ये दो बहुत ही अमूल्य रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप बहुत हेल्प कर सकते हैं. और तीसरा एक गोल है, वो है रिप्रेजेंटेशन. दुख होता है जब मुझे ये लगता है कि बहुत लोगों को इंटरनेशनली, यूरोपियन स्पेशली, जिनको नहीं पता कि नेपाल एक कंट्री है, वो बताना बहुत जरूरी है. इसलिए थ्रू इग्नाइट एंड थ्रू माय ओन पैजेंट जो मैंने अपना क्रिएट किया यूएसए में, उसका नाम है मिसेस ग्रैंड यूएसए, जहाँ पे नेपाल का एक टाइटल क्रिएट किया है. वो इसीलिए क्रिएट किया है कि ये बताने के लिए कि नेपाल एक कंट्री है. नेपाल कोई स्टेट या कोई सिटी या कोई पार्ट नहीं है. नेपाल अपने में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और जब तक वो अवेयरनेस नहीं होगी, मैं चाहती हूँ वो आगे एमेंसिफिकेशन नहीं होगा. और एक और प्लान है, एक प्रोग्राम है ओपेयर कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें लड़कियां हर एक कंट्री से यूएसए में आती हैं और कंट्रीज में भी जाती हैं. वहाँ पे वो पढ़ाई करती हैं, उनको 2 साल का वीजा मिलता है और वो एक फैमिली के साथ रहती हैं. तो मेरे साथ पिछले 6 सालों से मैक्सिकन, थाईलैंड, बहुत कंट्रीज की लड़कियां रही मेरे. उन्होंने बच्चों को देखा, उन्होंने पढ़ाई की, वीजा लिया, लेकिन उस प्रोग्राम में नेपाल अभी तक शामिल नहीं है. तो मैंने इस विषय में अपने ससुर जी माननीय श्री मंगल प्रसाद गुप्ता जी से चर्चा की है कि वाई नेपाल इज नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. उनको फ्री एजुकेशन है, फ्री वीजा है और उनको कल्चरल एक्सचेंज मिलता है. वहां पे वो पढ़ती हैं, इंग्लिश अच्छी होती है. तो वाई नेपाल इज नॉट पार्ट ऑफ, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी. तो इस अपॉर्चुनिटी को हम क्यों नहीं ले रहे? तो ये 4-5 जो है अभी के मेरे गोल हैं, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं ये नेपाल के लिए या मेरी जो कंट्री है जिसमें मेरी शादी हुई, उसके लिए मैं करूँ आगे. तो ये मेरे गोल है.